This conference will now be recorded. Okay. Let's start the session. Yes, sir. Yeah, today we are going to discuss about 8.1 trigonometric ratios. Which chapter is there trigonometry in NCERT book? Sir, 8th only. 8th only, no? Okay, thank you. Now let's see what we are going to discuss today. This is the first slide of the day. And एक बार माइक टेस्टिंग कर लेते हैं कौन कौन प्रेजेंट है अहिंसा दास जैसे आपको प्रेजेंट बोलना है अहिंसा दास Present, sir. then अवधेश अग्रवाल Present, sir. आर्तिका Present, sir. मयंक मयंक Present, sir. okay then निशा sorry नाइशा then ऋषभ अग्रवाल Present, sir. okay then जयंत Present, sir. ओके बेटा क्या हुआ लेट ज्वाइन के काफी 10 मिनट लेट आ रहे हो जल्दी आना है ठीक है और व्हाट अबाउट उमंग उमंग का क्या है उमंग दीपिका एंड करुणा दे आर नॉट ज्वाइनिंग येट ओके लेट्स सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे तो जस्ट ऑब्जर्व करिए इस स्लाइड में क्या है मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट ऑब्जर्व दिस
Okay, fine. What did you observe? May I ask you, Jay and Sahu? Yes, sir. So it's a right Oh. angle triangle. Fantastic. Okay, then. So it has the angle. Yeah. Wait. One side is there. So wait. Isosceles right angle triangle. Oh, perfect. Isosceles right angle triangle. Okay. Do you know any property regarding this? So both the means in the isosceles right angle triangle. So the Mhm. two sides of the triangle have same length. Okay, this side and this side both are having equal lengths. Okay, perfect. Yes. Then what about this root 2? That's the hypotenuse. Hypotenuse. How we get that? Using Pythagoras theorem? Yes, sir. Perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. Okay, fantastic. Hypotenuse. सही है. तो ये ट्राइंगल आप लोग को समझ में आया कि स्पेसिफिक ट्राइंगल है 45 45 90 ट्राइंगल. जस्ट अभी विजुलाइज करेंगे क्या हो रहा है ट्राइंगल में. ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग लैपटॉप पे बैठे हैं कि मोबाइल पे बैठे हैं सारे लोग? अच्छा मोबाइल. मोबाइल में. जैसे ही आप लोग क्लास पे एंटर करते हो ना, सबसे पहले प्रेजेंट टाइप किया करो. टाइप प्रेजेंट. अच्छा, ये मोबाइल पे जो लोग हैं वो कौन कौन है जरा बताइए. मोबाइल पे कौन कौन है? मोबाइल पे आपको बैठना नहीं है बेटा. आपके पास लैपटॉप नहीं है घर पे या डेस्कटॉप वगैरह, या सर टैबलेट चलेगा. टैबलेट भी चलेगा, आईपॉड वगैरह जो भी है सब चलेगा, आईपैड वगैरह ये सब सर मैं चलेगा. यहाँ गाँव में फंसा हुआ हूँ. मोबाइल पे यहाँ कौन पे तो कौन है? कुछ नहीं है. मोबाइल पे कौन कौन है नाम बताओ. हु इज सिटिंग इन मोबाइल? सर मयंक. James. मयंक, साहू. Yes sir. And what about Jayant? You are also? Yes, sir. बेटा डोंट सिट विथ मोबाइल. ठीक है, आपके लिए बहुत दिक्कत करेगा. अगर आपको क्लास को एंजॉय करना है और कंफर्टेबल रहना है तो डोंट यूज मोबाइल. ज्यादा अच्छा है घर पे डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करिए. ओके, परफेक्ट. जस्ट टाइप, फटाफट टाइप करेंगे सारे लोग. टाइप योर नेम और प्रेजेंट व्हाटएवर, or just simple hi message you can type. Hello, hi, whatever. Just type some message, present or whatever else. Please type everyone. I am waiting for it. You have to type every time whenever you come to the class. I mean आप किस टाइम पे आते हो वो रिकॉर्ड रहता है. तो सबने प्रेजेंट लिख दिया है. ओके, फैंटास्टिक. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. अगले स्लाइड में क्या है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं. नाउ नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो देखिए. ये है नेक्स्ट स्लाइड में. ये थोड़ी देर ऑब्जर्व करिए, फिर इस ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे. जस्ट ऑब्जर्व इट. Okay, Kartika, you tell me that what you are observing from this slide, this diagram. What did you observe? Yes, sir. So the big triangle is an isosceles triangle. Big triangle is an isosceles triangle. Okay. Yeah. The small ones are scalene triangles. The height is √3 from Pythagoras theorem. Okay. And both are right triangles. Yes, sir. Okay, Ainsa, can you tell me? Sir, this is an equilateral triangle. The triangle is divided into two right angles. Perfect. All the angles of the triangle are of 60 degree, and the Very- Pythagoras theorem is used to know the to measure of determine the hypotenuse. altitude. Okay, perfect. What are the measurements of the sides of this equilateral triangle? Avdesh. Sir, of the equilateral triangle, it's 2 of each side. 2 unit of each side. Perfect. Okay, how many right angle triangle you can see, Naisha?
There are two right angle triangles. Yeah, there are two right angle triangles. And what are the measurement of the angles? The angles are 60 degree, 30 degree and 90 degree. Perfect. This is 30, 60, 90 triangle. And now can you see that why? बेटा ये ऐसा क्यों आया होगा? मतलब ये हर एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ऐसे ही बनेगा ना, जहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होगा. जो रेशियोज हैं, आई मीन जो साइड्स हैं, ठीक है, जो साइड्स हैं वो सेम आएगा. ये समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 60 है, तो अगर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है तो ऑब्वियसली कि हाइपोटेन्यूज 2 होगा, बेस 1 होगा एंड ये जो होगा वो √3 होगा. ट्रायंगल आप कहीं पे भी ले लीजिए, ठीक है. तो दो तरह के आपने ट्रायंगल देखे, एक 45-45 और दूसरा आपने अभी देखा 30-60-90, ठीक है. तो ये दोनों ट्रायंगल आपको समझ में आना चाहिए, फाउंडेशन है ट्रिग्नोमेट्री का. अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर या फिर यहाँ पे अपोजिट, एडजेसेंट, इस तरह का लिखा हुआ है. तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सिंबल्स, ठीक है. जो भी है सिंबल्स होते हैं इस पे, जैसे कि साइन ए लिखा है, तो साइन जो है एक तरह का फंक्शन है जो एंगल ए पे अप्लाई हो रहा है और इसकी वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है. दो साइड का रेशियो होता है, इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोला जाता है. तो जिन दो साइड का ये रेशियो है वो है अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का. बहुत साइंटिफिक है. ये सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं. आप कहीं पे भी एक ट्रायंगल बनाइए, ये चीज एग्जिस्ट करेगी. अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है उसको हम लोग साइन ए बोल रहे हैं. बस हम जो चीज नया कर रहे हैं कि इसको साइन ए बोलते हैं. देन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आप देख लो, इसको कॉस ए बोल रहे हैं. देन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट को हम लोग टेन ए बोल रहे हैं, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं. जैसे ये आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, इनके रेसिप्रोकल अगर आप ले लें तो रेसिप्रोकल भी 3 बन जाएंगे. तो अगर रेसिप्रोकल ले लें, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक. देन यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट ले लें तो इसको हम लोग बोलेंगे सेके, रेसिप्रोकल है. देन कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट ए. तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देन उनके रेसिप्रोकल्स, तो 3 और 3 मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज. स्क्रीनशॉट की अगर फैसिलिटी है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्क्रीन का या कॉपी में लिख लीजिए. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. ये वही दो ट्रायंगल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल पे आप देख रहे हो कि हाइपोटेन्यूज 2 लार्जेस्ट साइड है. देन उस पे एक अल्टीट्यूड बना हुआ है जिसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, दैट इज √3. देन बेस है जिसको आप अभी नाम था ना, एडजेसेंट बोलते हैं इसको, बेस बोलो या एडजेसेंट बोलो. √3 यहाँ पे अपोजिट भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर, डिपेंड करता है कि एंगल क्या ले रहे हो. 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में अपोजिट क्या है अहिंसा दास? Sir, √3. Very good. And what is hypotenuse with respect to 60 degree? Hypotenuse तो fix 2. 90 का. Good. Then adjacent क्या होगा या base क्या होगा? 1. 1 Okay. unit. Very good. Fantastic. Then where is this? Rishabh Agrawal. Rishabh Agrawal. Yes. आप लोग के पास ईयरफोन है, हेडफोन या ईयरफोन? बिना ईयरफोन के कौन कौन बैठा है? Yes, sir. ईयरफोन है आपके पास ऋषभ? Yes, sir. नॉइस क्यों आ रही थी? हेडफोन लगाइए, बिना हेडफोन लगाए बात करेंगे तो इस तरह का आवाज आएगा. हेडफोन या ईयरफोन लगा के बैठेंगे, ठीक है? हेलो, ओके. Mayank Sahu, are you there? Yes, sir. Okay, tell me in the second diagram, 45 degree, what is hypotenuse? दोनों सेम है, कुछ भी हो सकता है. √2 units. हाइपोटेन्यूज तो √2 होगा. देन बेस क्या होगा इसका? 1 unit.
अपोजिट भी 1 होगा। तो रेशियो आपको समझ में आ रहा है, साइन 30 45 60 डिग्री। साइन 30 का देख के बताओ सारे लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। साइन 30 होता क्या है भाई साहब, और एक साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है और हाइपोटेन्यूज देख रहे हो 2, इसीलिए आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी वैल्यूज मेरे ख्याल से आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो थोड़ी देर इसको लिख लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज मेरे ख्याल से पता है सबको, आई होप। जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए, डायग्राम से देख के आप बना सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। कॉस जो होता है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, टेन जो है वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा। तो जस्ट इन दोनों डायग्राम को देख के आप ये वैल्यू टेबल बना सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू टेबल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो जिनको जहां पे भी डाउट हो प्लीज डाउट लिख दीजिए या टाइप कर दीजिए, डाउट टाइप कर दीजिए, मैं आपका डाउट ले लूंगा जो भी डाउट होगा। पर्सनल चैट पे भी डाल सकते हैं, एवरीवन पे भी डाल सकते हैं, एवरीवन पे आपको जहां पे डालना है डाल दीजिए, ठीक है। ओके नाउ ये कंप्लीट टेबल है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब होता है 0 से लेकर 360 को 4 भागों में अगर डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में, तो हर एक जो है वो 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल 0 से 90 तक के जितने भी आपको डिग्रीज दिख रहे हैं उनके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियोज के वैल्यू टेबल है, वैल्यू चार्ट है, ठीक है। ये बनता कैसे है, बहुत आसान है। एक तो डायग्राम आपको मैंने बता दिया, साइन 0 पे 0 होगा, देन साइन 90 पे 1 होगा, 30 पे हाफ होगा, 45 पे 1/√2 होगा, √3/। ये क्यों होगा, इसका आंसर सिर्फ 2 डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। एक डायग्राम मैंने दिखाया था आपको 45 45 90 ट्राइंगल, और एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था 30 60 90 ट्राइंगल। वो ट्राइंगल आप भी बना सकते हैं, वो ट्राइंगल बना के आप इस टेबल को भी आप बना सकते हो, ठीक है। जहां लिखा है नॉट डिफाइंड वहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, इसलिए उसको नॉट डिफाइंड लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने से वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं होती है। नाउ स्क्रीनशॉट लीजिए इस वैल्यू टेबल का, इस पे आज काम होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा एनिमेशन भी दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि काफी कुछ आप देखने वाले हो। तो चलिए ठीक है, एक आपको लिंक दिखाते हैं, एक डायग्राम दिखाते हैं, एक एनिमेशन दिखाते हैं आपको। ओके, जिनको भी डाउट रहेगा प्लीज बीच में बात करिएगा, क्योंकि ओके ये देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कुछ ग्राफ जैसी चीज दिख रहा है। ये एक्चुअली में एक यूनिट सर्कल का पार्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मैंने बताया ना, एक पूरे सर्कल को 4 पीसेस में अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो ये पहला पीस है, और यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है आपका, और ये जो एंगल स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री से ऐसे स्टार्ट हो रहा है एंगल, तो ये ऐसे एंगल आगे बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये हम इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होगा, ट्राइंगल कैसे बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को यहाँ पे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, वो थोड़ा देखने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है वो। चलिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल आप सबको दिख रहा होगा। यस सर। ओके, एंगल भी दिख रहा होगा, 35 डिग्री दिख रहा होगा ना। ओके ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ अभी आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मूवमेंट हो रहा है कुछ? क्या मूवमेंट हो रहा है? क्या मूवमेंट हो रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हाँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? रेड कलर। यस रेड कलर है, रेड कलर है ना परपेंडिकुलर। यस ओके, बेस क्या है? ब्लू सर, ब्लू कलर। ब्लू कलर है। एंड ब्लैक कलर क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या हाइपोटेन्यूज फिक्स है? हाइपोटेन्यूज फिक्स है कि वो बदल रहा है? सर वो क्या चीज बदल रहा है। हाइपोटेन्यूज नहीं बदल रहा है, लेंथ नहीं बदल रही है। हाइपोटेन्यूज बदल रहा है मगर लेंथ नहीं बदल रही है। लेंथ फिक्स है ना?
हाइपोटेन्यूज दो का fix है एंगल ना? हाँ हाँ उसके बोलिए बोलिए। दोनों साइड के एंगल्स चेंज हो रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एडजेसेंट मतलब एंगल तो खैर चेंज हो ही रहा है, साथ में जो लेंथ है एडजेसेंट का और परपेंडिकुलर का, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर के लेंथ भी चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस सर, हो रहे हैं ना? यस सर। हो तो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज फिक्स है कि नहीं, उसकी लेंथ यस सर। फिक्स यस क्यों सर, है? क्यों है फिक्स? क्योंकि रेडियस है ये। क्या ये? रेडियस। रेडियस रेडियस है, और रेडियस का रेडियस की लेंथ जो है वो यहाँ पे क्या है? रेडियस की लेंथ 1 क्या है यहाँ पे? यूनिट, 1. 1 यूनिट। है। परफेक्ट, इसीलिए इस सर्कल को बोलते हैं यूनिट सर्कल। क्या बोलते हैं सर्कल को? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल पे हमने क्या किया? रेडियस को हाइपोटेन्यूज बना दिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल पे आप देख रहे हो कि अब ऑब्जर्व करते चलना आप, ठीक है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो कुछ चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करते चलेंगे। अभी जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, यस यस सर। सर, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। और आपको पता है कि साइन क्या होता है? अभी साइन दिख रहा होगा, साइन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है 0.3637, क्योंकि परपेंडिकुलर बढ़ रहा है ना। जो परपेंडिकुलर है वही साइन होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो 1 हो गया। हम्म। यस सर। आपने देखा भी होगा 60 डिग्री पे कुछ आता है, 60 डिग्री पे क्या आ रहा था? सर √3/2। √3/2। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो 0.87 आएगा, आप कर सकते हो। वैसे कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठा करो, ठीक है। थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ अपन पढ़ाई करने वाले। देन कॉस की अगर बात करें तो कॉस क्या है यहाँ पे बता दो, इंसादास देख के बताइए कॉस क्या है? कॉस क्या होता है? ब्लू अपॉन हाइपोटेन्यूज। Based upon hypotenuse. यस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए कॉस की वैल्यू क्या आ रही है? देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 1, कॉस दिख रहा होगा, ओके। Cos. देन हाँ. तो क्या होता है? 0 से 90 हम लोग जाते हैं तो cos 0 1 क्यों होता है? समझ में आ रहा है आपको? cos 0 1 इसलिए होता है क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाते हैं। अब जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाते हो, क्या होता है? बेस कम होता है और यस 90 सर, पे आके बेस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसीलिए cos 90 0 होता है। और वैल्यू ग्रेजुअली कैसे बढ़ रही कैसे घट रही वो समझ में आ रहा है? तो ये आप ट्रायंगल बना के भी देख सकते हो। 5-6 ट्रायंगल अपनी कॉपी में बनाएंगे, आपको पिक्चर समझ में आ जाएगा। ये तो जस्ट एनिमेशन है, आप इस प्रैक्टिकल को भी कर सकते हो। तो जस्ट रेशियोज का बिहेवियर क्या है, क्या क्या एंगल आते हैं, कैसे आते हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। टेन टेन के केस में क्या होता है? टेंजेंट के केस में क्या होता है? टेन थीटा के केस में क्या हो रहा है? ये टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? किनका रेशियो है? रेड कलर अपॉन ब्लू कलर, दिख रहा है? ब्लू कलर। परपेंडिकुलर Okay. यस सर। अपॉन बेस। Yeah, perfect. So, Naisha, you tell me about the tangent, tan theta. क्या हो रहा है यहाँ पे? tan theta के डायग्राम में क्या हो रहा है? Naisha, हेलो? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 0.71 में 45 डिग्री में 1 आ रहा है। हाँ, ये डायग्राम को देख के बताइए क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? परपेंडिकुलर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बेस छोटा होते जा रहा है, तो वैल्यू क्या होगी? ग्रेजुअली बढ़ेगा घटेगा? सब वैल्यू बढ़ेगा। ग्रेजुअली बढ़ेगा। यस। तो रेशियो समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। चलिए, अगर रेशियो आपको समझ में आ गया हो तो फिर देखते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। Perfect. Someone is waiting to join. The meeting is logged. सर वो मेरे को सर जयंत कॉल किया था, सर बोल रहा था जयंत है। कि उसका ऑडियो प्रॉब्लम हो गया था तो रीस्टार्ट किया है वो। हाँ यस सर, तो उसकी वजह से वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को जब भी क्लास टाइमिंग रहेगा आप लोग
10 मिनट पहले सारी चीजें चेक करिए, ठीक है, क्योंकि ये इश्यूज आते हैं तो पहले से चेक करके बैठिए। ओके, अभी लॉक अनलॉक हो गया है, तो मीटिंग तो लॉक हो जाएगी, क्लास चलते रहेगा, आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, तो इंश्योर करेंगे सारी Yes, टेक्निकल चीज। ओके, ये सर वैल्यू वो टेबल ऑटो मैंने ग्लिच हो गया था तो मैं उसको रिस्टार्ट कर रहा था। ओके कोई बात नहीं, वैल्यू टेबल जो है वो आपको दिख रहा है, देन हाँ सर। वैल्यू टेबल आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी चीजें आपको समझ में आ गई है। यूनिट सर्कल फिर से देख रहे हैं, फॉर साइन एंड कोसाइन क्या होता है ये देखते हैं, यूनिट सर्कल के थ्रू समझते हैं इसी चीज को। ओके, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। yes sir. ओके, क्या दिख रहा है ऋषभ? तो सर्कल एक छोटा सा और हम लोग उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ब्लू कलर का आउटलाइन है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि हम जो है वो कुछ करने वाले हैं, ये यूनिट सर्कल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यूनिट सर्कल आपको अगर दिख रहा है देन नाम भूल था, कार्तिका। कार्तिका आप बताइए, ये हम क्या कर रहे हैं, ये जैसे जैसे पॉइंट ऊपर जाते जा रहे हैं क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? हम सर्कल तो पे वैल्यू बढ़ रही है। ओके, वैल्यू बढ़ रही, वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये हम जस्ट ऑब्जर्व करने वाले हैं कि सर्कल पे चलने से क्या होगा। तो आपको पता है साइन किससे रिलेटेड है? साइन मतलब किससे रिलेटेड है? परपेंडिकुलर से, क्योंकि यूनिट सर्कल इसलिए हाइपोटेन्यूज फिक्स है, और हाइपोटेन्यूज अगर फिक्स है तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी? लेंथ दिख रहा है आपको? ओके, तो ये क्या ओके, हो रहा है, हाँ। लेंथ, ये परपेंडिकुलर की हाइट दिख रही है आपको? जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रहा है वो हाइट ट्रेस होते जा रहा है, ये देखो, यस इक्वल सर। लेंथ हाइट ट्रेस, वो एक ट्रेसिंग करते जा रहा है, ठीक है, मूव करते जा रहा है, 90 पे 1 होता है, आपको मालूम है, देखा सबको? यस सर। और जैसे ही जैसे ही आप Yes sir. 90 के ऊपर जाओ तो परपेंडिकुलर क्या होगा, धीरे धीरे ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, दिख रहा है? Yes sir. ओके, और जैसे ही अपन 180 के और आगे जाएंगे, अब हाइट क्या होगी, ऊपर है कि नीचे है? नीचे नीचे। नीचे negative. नेगेटिव होने के कारण नेगेटिव चला जाता है, देन और आगे जाते हैं तो अब क्या हो गया, नेगेटिव में वैल्यू घट रही है, पहले नेगेटिव में वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ, फिर नेगेटिव में वैल्यू घटना शुरू हुआ, इसको एक कंप्लीट वेव बोलते हैं, यही साइन का वेव होता है, ये साइन वेव होता है, दिखा आप सबको साइन वेव? यस Yes सर। sir. ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जैसे ही आप क्लास पे होते हो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी इस पे है कि नहीं, देख लो सॉफ्टवेयर में, और नहीं हो तो मोबाइल वगैरह किसी भी चीज से स्क्रीनशॉट ले Sir लीजिए, है, है ना? तो गुड, बहुत मोबाइल में अच्छा है। हाँ, वेरी गुड। देन अभी हम लोग जैसे हमने साइन देखा वैसे ही कॉस देखते हैं, वापस 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं। नाइशा, दिस टाइम यू हैव टू ऑब्जर्व, एंड अभी देखो हम 0 डिग्री से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, और 0 डिग्री से जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, एक मिनट, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर क्या है यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो क्या है? Cosine. कोसाइन। कोसाइन। नाइशा, आर यू देयर? Cosine की wave. नाइशा पारेख, क्या हुआ? आप लोग के यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू है क्या? No बेटा sir. ऑनलाइन अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है तो नेट कनेक्शन सही होना चाहिए। आयशा, प्लीज टॉक टू मी। समझ नहीं आ रहा। मयंक, क्या नहीं समझ में आ रहा वो तो बताना पड़ेगा। देन नाइशा, आर यू देयर? ओके, ठीक है। अहिंसा दास,
Ahimsa, are you there? Ahimsa Das, are you there? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मयंक, Yes, sir. Yes, sir. अहिंसा क्या हुआ? ओके, नॉट ऑडिबल। ओके, जयंत आप बताइए, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं आप? देखो मयंक, ऐसा है कि ये जो ब्लू कलर है वो बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, याद आया? अब जितना बेस है उसको, ब्लू कलर को हमने, जो लेंथ है ब्लू कलर की उसको हाइपोटेन्यूज पे ले गए, सॉरी परपेंडिकुलर पे ले गए। तो जो हाइट है वो ट्रेस करते जा रहा है, जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं वो जितनी हाइट बेस की है वो टाइप होते जा रहा है। कैन आई रीजॉइन? ओके, हाँ, जिनको ऑडियो में प्रॉब्लम है वो रीजॉइन कर लीजिए। कार्तिका, यू कैन रीजॉइन। सर हाँ मतलब जो ट्रेस हो रहा है वो कर्व, वो बेस का कर्व है। हाँ जी, वो बेस का कर्व है, क्योंकि दिख रहा है अभी बेस, आपको बेस दिख रहा है ना? हॉरिजॉन्टल है कि Yes, sir. परपेंडिकुलर है? ब्लू कलर, ब्लू कलर हॉरिजॉन्टल है कि परपेंडिकुलर? हाँ, हाँ, हॉरिजॉन्टल है ना? Horizontal है। तो हॉरिजॉन्टल। इसीलिए ये कॉस का एक कंप्लीट वेव होता है, कैसे वैल्यू बढ़ती है कैसे घटती है, ठीक है, इसी को कर्व बोलते हैं। देन अगर एक साथ अगर आप देखो साइन का और कॉस का, तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे जो ट्रेस करते जा रहे हैं, परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको रेड कलर में? Yes, sir. ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें होती हैं। और अभी आपको दिख रहा होगा ये हाइट और ब्लू कलर दिख रहा है आपको, तो एक साइन है एक कॉस है। तो ये इस तरह से जो है वो, ठीक है, विजिबल है, चल रहा है स्क्रीन पे? आपका स्क्रीन Yes, हैंग sir. तो नहीं हो रहा है? नहीं sir. No, sir. ओके, तो चीजें समझ में आ रही है आपको? ये साइन वेव कॉस एक्स, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ इन फंक्शंस को, ये इस तरह का कुछ होता है। डिटेल में काफी आप 11th में पढ़ते हो, बट फिलहाल अभी आप शॉर्ट में इतना समझ सकते हो। सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। my voice is not coming, Mayank? Jayan? सर कमिंग Coming. Oh, Ahinsadas, can you talk something? Speak something? I think some connectivity issues there with you. Yes, sir. I think so. Ahinsadas, am I audible to you? सर क्योंकि जिनका माइक ब्लैक कलर का है सिर्फ उन सब का काम कर रहा है, लेकिन व्हाइट वालों का काम नहीं कर रहा। अब वो नहीं पता यार। Not connected to audio. आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है अहिंसादास। चलिए ठीक है, आप लोग चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ऑनलाइन क्लास में सिस्टम सही होना चाहिए। ओके, अहिंसादास का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, उसको कोई टाइप करके बता दो। अहिंसादास, your voice is not coming. Your audio is not connected. ये लोग का इंटरनेट ऑडियो है कि नहीं? इसीलिए तो कल आप लोग को डेमो क्लास रखा था ना। हाँ सर। जैन बोल रहा है मेरे में ऑडियो प्रॉब्लम है। सर शायद तक उसने ना इंटरनेट ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया होगा। हाँ, वो कुछ ना कुछ इन लोग क्या ईयरफोन में गड़बड़ी कर रहे हैं। सर कार्तिका भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है। ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है, नहीं हो रहा है उससे भी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसीलिए कल डेमो क्लास रखा था कि आप लोग चीजों को थोड़ा सा समझ लो बोल के, क्या है कैसे है, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होता ही है। ओके, इट्स ओके, फाइन। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। Yes, sir. तो ये 90 माइनस थीटा कॉस साइन 90 माइनस ए कॉस, ये इक्वल क्यों होते हैं, ये कैसे आया?
ये इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बाकी इन लोग बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी आवाज नहीं आ रही है। So I have some problem now, not able to join the meeting. Okay, perfect. देखते हैं क्या है इस पे। जयंत सर, नेट की स्पीड अच्छी है पर ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। सर आप आराम से इसको कनेक्ट करिएगा सर, कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा देखिएगा सर आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्योंकि सिस्टम के इश्यूज होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नाइचा पारेख, आर यू, कैन यू हियर मी राइट नाउ? Am I audible? चलिए Yes, एक और sir. Yes, एनिमेशन sir. आपको दिखाते हैं, एक और एनिमेशन आपको दिखाते हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। तो अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझ में आता होगा कि एक अगर 30 तो दूसरा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अभी भी रेड और ब्लू Yes. कलर में बात करते हैं। तो ये बताओ कि साइन का जो वैल्यू होगा, ठीक है, जो वैल्यू साइन का 27 में आ रहा है, जो वैल्यू साइन का 27 में आ रहा है, क्या वो 63 में कॉस का आ रहा है? जैन तो नहीं सुन पा रहा है। ऋषभ तुम सुन पा रहे हो? अवधेश, हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। अवधेश ये बताओ, यस अवधेश सर। अग्रवाल, अवधेश ये बताओ 63 डिग्री के लिए बेस क्या होगा? सर बेस 0.9। कलर भी बोल रहे हैं साथ में। सर ब्लू। ब्लू कलर नहीं है भाई, 63 नहीं के सर, लिए रेड होगा सर। रेड होगा। 63 के Red लिए होगा। बेस जो है रेड होगा, और 27 के लिए हाँ। परपेंडिकुलर क्या होगा? रेड। वो भी रेड होगा। और कॉस Red. थीटा में फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहाँ रेड अपॉन वन दिख रहा है दोनों में, साइन और कॉस दोनों में। Yes, sir. यस सर। यस सर। 27 मतलब हुआ सर रेड 1 अपॉन by 1। 2। कॉस 27 क्या हुआ? रेड अपॉन 1। सॉरी, यस सर। साइन जो हुआ साइन 27 वो क्या हो रहा है? रेड अपॉन 1। ठीक है, और कॉस 63 क्या होगा? वो भी रेड अपॉन 1 होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो 1 है ना, यूनिट सर्कल है ये भी। आया समझ में? तो जो वैल्यू 27 के लिए वही कॉस की 63 के लिए। तो ये आप देख लो 0 से 90 के लिए आप जो भी एंगल लोगे, तो इसीलिए 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? दोनों इक्वल क्यों होते हैं, समझ में आ रहा है? विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। क्योंकि जो साइन के लिए परपेंडिकुलर है वही एग्जैक्टली हाइट क्या है, वही कॉस के लिए बेस है। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? साइन के लिए जो परपेंडिकुलर है वही कॉस के लिए क्या बन रहा है? बेस बन रहा है। कॉस वो भी सेम बन रहा है, वो भी रेड कलर का बन रहा है। अगर 10 में देखें तो क्या होगा? 10 क्या होता है? रेड अपॉन ब्लू। अब Yes, sir. 1029 क्या है? 1029 क्या है? रेड अपॉन ब्लू। अब बोलो कॉट 61 क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट। 0.5 अपॉन सर कॉट किसका कॉट? कॉट 61 का 0.5 अपॉन 0.9। मतलब रेड अपॉन ब्लू हुआ ना। रेड अपॉन ब्लू। हाँ। तो 10 जो हो रहा है वो रेड अपॉन ब्लू हो रहा है इस डायग्राम में, और वैसे ही आपको दिख रहा है कि कॉट क्या हो रहा है? वो भी रेड अपॉन ब्लू हो रहा है। लेकिन Yes, sir. एंगल सेम है कि अलग अलग है? दोनों ट्रायंगल अलग अलग। अलग अलग है। है। कैसे कैसे एंगल है? दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री सर। ये फॉर्मूला आपको समझना था, आप समझ गए, वेरी गुड। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन चेंज हो गया है। Yes, ये sir. फॉर्मूले आप नोट कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए होगा, और कॉस 90 माइनस ए जो है वो साइन होगा। क्यों होगा Sin वो A. आपने डायग्राम में विजुअलाइज कर लिया है। ओके, तो इसी फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं। मे बी कि आज तो सिर्फ लेक्चर हो पाएगा, क्वेश्चन कल से करेंगे शायद, टाइम वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. देन नेक्स्ट देखिए, ये इन लोगों का ऑडियो ही बंद है। देखो निशा पारेख का बंद है, म्यूट है ये, नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो। निशा
Naisha, not connected to audio Jayant, and not connected to audio अहिंसा दास. तीनों not connected हैं, उनका ऑडियो कनेक्टेड ही नहीं है. तो चलिए, ये आपको वो स्लाइड आपने देख लिया था. देन नाउ लेट्स सी दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. क्या क्या आइडेंटिटीज होते हैं, थोड़ा आप इसको नोट करिए कॉपी में, फिर बताते हैं आपको. सर ये जो तीनों cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ये जो दिया है, ये नोट करना है. हेलो. ओके, आपने लिख लिया सबने, नोट कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, देन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू. तो ये सब फॉर्मूले क्यों आते हैं, इसका बेसिक है पाइथागोरन आइडेंटिटीज बोला जाता है. तो वहीं से ही ये सारे फॉर्मूले बनते हैं. और पाइथागोरन आइडेंटिटीज क्या होते हैं एक बार चेक करते हैं. ठीक है, क्या प्रूविंग्स हैं इनके, लेट्स सी दैट. टेक्निकल इश्यूज आएगा बेटा नेक्स्ट क्लासेस में. आप लोग थोड़ा सा सिस्टम वगैरह चेक करके बैठेंगे. बहुत लोगों की आवाज नहीं आ रही है. अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था हेलो वगैरह, आ रही थी उसकी आवाज. ओके, अभी कौन कौन सुन पा रहे हो? सर वो मेरी आवाज. सर मैं सुन पा रहा हूँ. यस सर. सर ठीक है, तो जो लोग सुन पा रहे हो वो देखो, 3 लोग तो सुन भी नहीं पा रहे हैं. जयंत भी नहीं सुन पा रहा है, हिंसा भी नहीं सुन पा रही, नाइशा भी सर नहीं सुन पा जयंत रही. ऑफलाइन है. अच्छा, ऑफलाइन हो गया वो. सर फिर से Okay. रिकनेक्ट किया मेरे ख्याल से. ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए डायग्राम को देखते हैं. ये क्या दिख रहा है बेटा आपको? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सर्कल के. ओके, देखते हैं. ठीक है, क्या चीजें हैं. आपको दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया है. पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, आर स्क्वायर. अभी हमने क्या किया, इस पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. यस सर. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या होगा? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या हुआ? ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर. हाँ, देन उसके क्या होगा? बाद हाँ, तो किसको आप 10 बोलते हो? परपेंडिकुलर y अपॉन x को 10 बोलते हो ना, और r अपॉन x क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा. क्योंकि बेस, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec होता है, x अपॉन r जो होता है. तो ये प्रूफ है इसका. ठीक है, जो आपका पाइथागोरन आइडेंटिटी, उसका ये प्रूफ है. ठीक है, तो ऐसे बाकी के भी प्रूव हो जाते हैं. तो आप कर सकते हो इसी तरह से, इसी मेथड से. ठीक है, ओके. ये समझ में आया आपको कि डाउट है? Yes, डाउट है sir. तो टाइप कर दीजिए डाउट. ओके, और बिल्कुल सिमिलरली सर आ गया. आ गया ना? ठीक है.
सिमिलरली आप जितने भी बाकी के भी दो आइडेंटिटीज हैं, जैसे ये एक और आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी आप उसको कर सकते हो। जैसे ये सेम पाइथागोरस है, देन अगर हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर दें, y से डिवाइड कर दें Y तो क्या से होगा? तो आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ पे y वाला जो है टर्म 1 हो जाएगा, और x अपॉन y को आप क्या बोलते हो? कॉट बोलते हो, cot और r अपॉन y को आप कोसेक बोलते हो। तो cosec. इसलिए ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई, समझ में आ रहा है? तो वैसे Yes, ही sir. आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो वो भी बन जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. ओके, नाउ वापस स्लाइड पे आते हैं, और ये तीनों आइडेंटिटी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं Yes, क्या है। sir. ओह, आज की थ्योरी हो गई, इस पे आप कुछ सवाल बनाते हैं। लेट्स सॉल्व सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, Yes, sir. और देखते हैं आपको कितना समझ में आया। आप लोगों को इसका बैकग्राउंड का म्यूजिक सुनाई देता है क्या? हाँ सर, देता है ना. हाँ सर. हाँ सर. ओके, ओके, कार्तिका, हैव यू ज्वाइंड? दीपिका सिंह. Deepika Singh is Sir, arriving now. somebody else has also joined. Okay, Deepika, talk to me. Yes, sir. बेटा इतना लेट कैसे? सर लेट हो गई थी, फिर पास आईडी में दूसरा लगा रही थी तो उसमें नॉट फाउंड दिखा रहा था, फिर कार्तिका से पूछी तो सही वाला बताई। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो बेटा? सर हूँ, उसमें मेरे पास दूसरा वाला नहीं आया है, कल वाला ही है, और तो मैं नहीं देखी। अरे व्हाट्सएप आज ही भेजा, अभी तो 3 बजे भेजा हूँ, आपने देखा नहीं शायद। आप लोग डेली 3 बजे जब भी क्लास रहती, 3 बजे के पहले थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लिया करो ग्रुप पे, है ना? और अगर नंबर नहीं होगा, व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा, तो इस पे जुड़वा लो आप लोग, ठीक है? क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू ही आप लोग कनेक्ट हो पाओगे, और कोई दूसरा मीडियम भी नहीं है। आई थिंक कार्तिका, कैन यू हियर मी? कार्तिका, Sir, she has sent some messages on WhatsApp किसको? in group. इन ग्रुप, ओके। Yes, to you. अच्छा चलो ठीक है, अभी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आप पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। एनीबॉडी प्लीज रीड द क्वेश्चन। आपको सॉल्व करना है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड दिस क्वेश्चन? वैल्यू फाइंड करना है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है? क्या कर सकते हैं, किसी के पास क्लू है? एनीवन टेल मी। दीपिका, चलो ऋषभ तुम बताओ। सर वो जो वैल्यूज है sin 30 की, उसको पुट करते जाएंगे। वैल्यूज है sin 30 के, वो पुट करते जाएंगे। मतलब सर ये जितने भी है, एक मिनट बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि sin 30 किसके इक्वल होगा? तो sin 30 1/2 के इक्वल होगा। cos 60 के भी इक्वल होगा। अरे हाँ, क्योंकि 30 और 60 का सम 90। सर 0 आना चाहिए आंसर। यस, परफेक्ट। 0 क्यों आएगा, एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि sin 30 इक्वल टू cos 60 और cos 30 इक्वल टू sin 60। यस, तो इसीलिए sin 30 से क्या कैंसिल हो जाएगा? cos 60।
और cos cos 30 से क्या 36 cancel हो जाएगा, sin 60 इसलिए आंसर क्या आएगा, 0. 0 आएगा। परफेक्ट। तो ये आपको बिना सोचे अपने पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब Yes, sir. दिमाग लगाना है, सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, फिर वैल्यू तो रखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा वैल्यू रखते रखते, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है अवधेश अग्रवाल। टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर tan 30 by cot 60. क्या बोले सर वैल्यूज पुट करके बनाएंगे। वैल्यूज पुट करेंगे अवधेश अग्रवाल। मयंक साहू आर यू देयर? मयंक और जयंत। सर आंसर आएगा 1। 1 आएगा, किसने बोला? सर मैं ही बोला हूँ, अवधेश ना। अवधेश। यस बताओ बेटा ये 1 क्यों आएगा अवधेश? सर tan 30 इक्वल्स टू cot 60 होता है इसलिए। यस परफेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा ना, तो जो जितने भी को फंक्शन होते हैं, साइन का को फंक्शन क्या होता है, कॉस, ठीक है। देन tan का को फंक्शन क्या होगा, कॉट होगा। वैसे ही सेक का क्या होता है, कोसेक होता है। तो इनके जो भी एंगल होते हैं ना, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो ये वैल्यूज आपस में क्या होती है, इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? बस इनका सम क्या होना चाहिए, एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखो तो 30 और 60 का सम 90 डिग्री, तो इसलिए वैल्यू इसका वन आएगा, ऑप्शन डी है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू आपको बताना है sin 45 cos 45। कौन बताएगा? मयंक साहू तुम बता दो। मयंक। सर बताऊं? हाँ बताओ। सर √2। आंसर √2 होगा। sin 45 क्या होता है? सर 1/√2। 1/√2 होता है। और cos 45 क्या होता है? सर वो भी 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा? 2/√2। इसलिए आंसर √2 आ रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। परफेक्ट। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, और कुछ असाइनमेंट मैं आपको दे सकता हूँ, तो असाइनमेंट भी आपको बनाना होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.